Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's session, we are going to talk about dividends, and there are two types which we are going to study today: are cash dividends and stock dividends. And we will see how to record the transactions that are involving these kind of dividends. So let's start our discussion with the cash dividends first. The decision to pay cash dividends rests with the board of directors. Always remember one thing कि board of directors annual general meeting में decide करते हैं कि क्या हमने dividend देना है इस particular accounting period में या नहीं देना. और अगर हमने dividend देना है तो वो कितना होना चाहिए, 1 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर कैश डिविडेंड होगा या स्टॉक डिविडेंड होगा. अगर स्टॉक डिविडेंड है तो कितना परसेंटेज होना चाहिए, 5%, 10%, 15%, 30%, हाउ मच. तो इट्स totally on the discretion of the board of directors that how much they announce, right? And it also involves the situation. They have to see the situation what are the amounts of retained earnings and your cash balance and your stock and the market situation of the share, the prices of the share, the buying and selling situation. इन सब चीज़ों को, ट्रेडिंग्स को और प्राइसेस को देखते हुए फिर वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा डिविडेंड देना है और कितना देना है. ठीक है. Sometimes companies decided not to pay dividend. Sometimes when they are even in the profits, they decide not to give the dividend. Why? There are multiple reasons. For example, companies sometimes they want to invest more funds. They keep the cash to invest in corporation's growth. In fact, for example, अगर आपकी company डिसाइड कर रही है कि इन नियर फ्यूचर में हमने कोई प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई न्यू इस्लामी यूनिवर्सिटी है, लेट से उसने कोई न्यू कैंपस स्टार्ट करना है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए भी पैसे को रोक लेती हैं. डिविडेंड्स उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती. सिमिलरली समटाइम्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड मार्केट अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, या उसके लिए भी आप पहले से ही अपने पास रिजर्व्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, पैसे इकट्ठा करना लग पड़ते हैं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट की, प्रिवेल की, अपेयर हुई, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे इफ वी हैव फंड्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर रीजंस of not to pay dividend is one of the reason is to pay off debt. If the company is having a large volume of debts, like उसने कर्जा लिया हुआ है from financial institutions and they want to pay it off, तो उसके लिए भी हो सकता है, या किसी भी कंटीजेंसी पर्पस के लिए, किसी इमरजेंसीज को मीट करने के लिए भी आप अपने पास रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इस साल पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में डिविडेंड नहीं देना. ठीक. Otherwise, most of the corporations they pay dividends on regular basis. Sometimes कुछ companies होती हैं वो हमेशा regular basis पे देती हैं, और कुछ ऐसी companies भी हैं जो बिल्कुल dividend नहीं देती, right? But always remember one thing, that these dividends basically this is a profit, part of the profit that is being distributed to the shareholders as dividend. Actually dividend है क्या? It's a profit, part of the profit होता है. जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स, जो उसकी कंपनी के रियल ओनर्स हैं, उनको एज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. एंड डेफिनेटली इट इफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट प्राइस पॉजिटिवली. हमेशा जब भी कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो उनका स्टॉक मार्केट प्राइस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है. Now if we talk about how to record these dividends, तो कैश डिविडेंड्स या स्टॉक डिविडेंड हो, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि there are 3 important dates that involved in this dividend payment. The very first thing is the date of declaration. Date of declaration is that particular date which is announced by the when the AGM annual general meeting and the board of directors actually they declare that we are about to give dividend to the shareholders in this particular year, either it is cash dividend or stock dividend, and what would be the amount or the percentage.
जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उस डेट को हम डेट ऑफ डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। जब तक एजीएम के अंदर आप अनाउंस नहीं कर देते, कंपनी के ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि वो डिविडेंड दे। राइट, कोई कंपनी को शेयर होल्डर के कह नहीं सकता कि हमें, आपने इतना प्रॉफिट कमाया लाखों में, मिलियंस में, बिलियंस में, हमें भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए इन केस ऑफ डिविडेंड। आप कोई भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन वंस एजीएम के अंदर आपके डायरेक्टर्स कॉल कर दें, डायरेक्टर्स आपके डिक्लेयर कर दें कि हम डिविडेंड देंगे, तो फिर वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी भी कौन सी बनती है? करंट लायबिलिटी। इट मींस विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कंपनी हर हाल में इसको पे ऑफ करती है, लेकिन डेफिनेटली वो महीना डेढ़ महीने के अंदर पे ऑफ कर देती है, लेकिन वो दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज अ करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। You may see that this creates a legal liability for the corporation that they have to pay the amount, announced amount to the shareholders. डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद सेकंड डेट इंपॉर्टेंट जो होती है वो डेट ऑफ रिकॉर्ड होती है। डेट ऑफ रिकॉर्ड में एक्चुअली कोई हम एंट्री पास नहीं करते, लेकिन डेट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज all the shareholders that are on your list on the date of record are actually entitled to receive dividends from the company, and this is usually after 2 weeks of the declaration of dividend. तो कंपनीज के रजिस्ट्रार और जो आपका होता है ट्रेजरर, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि आज इस तारीख को जो डेट ऑफ रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्ड को कौन कौन हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है। तो वो अपडेटेड लिस्ट आप ले लेते हैं, और ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम लोगों ने डिविडेंड देना है। और उसके बाद फिर आप डेट ऑफ पेमेंट, जो थर्ड डेट है, द इम्पोर्टेंट डेट इज डेट ऑफ पेमेंट। तो ये वो डेट ऑफ पेमेंट होती है जिस दिन आप फिर उन तमाम शेयर होल्डर्स के नाम पर चेक जो है वो इशू कर देते हैं या पेमेंट रिलीज कर देते हैं। तो एक्चुअली आपकी जो जनरल एंट्री पास होती है, ये जो रिकॉर्डिंग होती है, वो होती है डेट ऑफ डिक्लेरेशन वाले दिन। उस दिन आपने उसको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है अपनी। और सेकेंडली डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, इधर बाय कैश अगर कैश डिविडेंड है, और बाय इशूइंग स्टॉक अगर स्टॉक डिविडेंड है। नाउ after these 3 dates, let's see how to record transaction at the date of declaration. For this we have an example with us. The entry to record, this is, let's see and go through this example first. The entry to record a January 9th declaration of $1 per share cash dividend by the directors of ZTech Incorporation with 5,000 outstanding shares. Now, what does it mean? That you are going to pay $1 per share declared dividend. कैश डिविडेंड दे रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था, ये देखिए कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड आप लोग पे कर रहे हैं, कितना? 1 पर शेयर। जितने भी शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग हैं, उस वक्त कंपनी के इस वक्त आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 5000। ये देख रहे होंगे आप लोग, 5000 शेयर्स इन्होंने मेंशन किया कि हमारे 5000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1, इट मींस $5000 आपने पे ऑफ करने हैं। सो आप क्या करेंगे, बेटा ये जो होता है ना हमारे पास कैश डिविडेंड, इट ऑलवेज रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। एसेट साइड में आपका कैश कम हो जाता है, और ऑनर्स इक्विटी वाली साइड पर आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती है। सो बेसिकली ओवरऑल बैलेंस शीट का वॉल्यूम डिक्लेयर्ड अमाउंट से कम हो जाता है। अब आपके यहाँ पर डिक्लेयर्ड अमाउंट है 5000, तो आफ्टर पेमेंट of the cash dividend, the overall volume of the balance sheet reduces to 5000. So इसमें आप देख रहे होंगे डेक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ टाइम पर कि उन्होंने जनरल एंट्री में डेट ऑफ डेक्लेरेशन रिकॉर्ड की है, जनरल एंट्री में डेट रिकॉर्ड कर ली 9 जनवरी। उसके बाद आप देखिएगा रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स इज बीइंग डेबिटेड to show the decrease of owner's equity. So decrease in owner's equity will be recorded as debit, while this is your liability. ये payable आपका लफ्ज देख रहे हैं आप, dividend payable, इनको डिविडेंड देना है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, right? So dividend payable is the liability. I said earlier it's the current liability. So increase in liability will be recorded as credit. अब आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 5000 की। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस दिन आप डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड,
उस दिन वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है. नाउ okay, over here it is also mentioned that common dividend payable is a current liability. Now, on the date of record, no formal entry is required. You can see no formal journal entry is needed on the date of record. It's just as that the registrar just maintains the record of all of the shareholders on that particular date. हाँ, उसके बाद उस दिन के बाद अगले दिन बेशक आप अपना शेयर सेल आउट कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन डेट ऑफ रिकॉर्ड को अगर आप ऑनर दें तो आपको डिविडेंड के लिए आप एंटाइटल्ड हो गए हैं. लेकिन अगर अगले दिन उससे अगले दिन आप अपना शेयर मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सेल आउट कर देते हैं, ब्रोकर के थ्रू सेल आउट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिविडेंड फिर भी मिलेगा. राइट नाउ फर्स्ट फेब इज द डेट ऑफ पेमेंट फॉर दिस कंपनी. First fab is the date of payment. Now we need to pass a journal entry to record this payment. How we will make this payment? अब ये देखिए, ये लाइबिलिटी जो आपकी है कॉमन डिविडेंड पेएबल, ये हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. What happened? Accounting for partnership. Okay, we were on this page. This is the date of payment. लाइबिलिटी टू कैश पेमेंट आपकी एंट्री पास होगी. हम लोगों ने फर्स्ट फेब डेट डाली, दैट दिस इज जनरल, और उसके बाद आप एंट्री पास कर रहे हैं. कॉमन डिविडेंड पेएबल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. सो 5000 आपने क्रेडिट कर दिया, तो ओवरऑल आपने इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो रिटेन अर्निंग्स रिड्यूस हुई है 5000 से और आपका कैश रिड्यूस हो गया है 5000 से. तो ओवरऑल बैलेंस शीट का वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो गया. ठीक हो गया. नेक्स्ट वी हैव डेफिसिट्स इन द कैश डिविडेंड. अच्छा, इसमें इस तरह होता है बेटा कि बिफोर पेइंग द कैश डिविडेंड यू मस्ट इंश्योर दिस थिंग दैट यू हैव एनफ बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट टू पे ऑफ द डिविडेंड. क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में से पैसा निकलना है, इसी में आपकी जो अर्निंग्स सरप्लस अर्निंग्स होती है वो रखी होती है रिटेन अर्निंग्स के अंदर. अगर किसी वजह से आपका रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस डेबिट हो गया है तो इट मींस कि रिटेन अर्निंग्स डेफिसिट कहलाएगा. इसको हम अकुमुलेटेड डेफिसिट भी कहते हैं, अकुमुलेटेड डेफिसिट. ठीक हो गया जनाब. वैसे बहुत ज्यादा जो होती हैं, अगर आपकी रिटेन अर्निंग्स का लेवल बहुत कम हो, मतलब एविडेंट होल्डिंग कम हो और आपको लग रहा है कि कैश डिविडेंड देने से ये मजीद डेफिसिट में जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज होते हैं वो अलाउ नहीं करते इस सिचुएशन में कि कंपनी डिविडेंड दे. फिर वो कंपनी विदाउट डिविडेंड उन ईयर्स में सरवाइव करती है. ये जो लीगली आप इसको उस वक्त या बिल्कुल हेड टू हेड आप चल रहे हो कि अगर आपके पास 3 लाख रुपया पड़ा है रिटेन अर्निंग्स में और सबका सभी आप शेयर होल्डर्स को दे दें, इट्स नॉट अलाउड. बिकॉज जो ऑनर्स इक्विटी का में जो पैसा पड़ा होता है वो एक तरह से क्रेडिटर्स के लिए प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है. क्रेडिटर्स आपको लोन क्यों दे रहे हैं आपकी कंपनी को? इसीलिए बिकॉज उसमें ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट है. तो अगर आप अपने डेट टू इक्विटी रेशियो में इक्विटी को बिल्कुल ही कम कर देंगे तो फिर क्रेडिटर्स के क्लेम्स को उनके क्लेम को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट फिर इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि अगर आपकी रिटेन अर्निंग्स डेफिसिट में जाने का डर है तो फिर आप बेशक डिविडेंड ना दें. राइट, सो यू कैन रिव्यू दिस पैराग्राफ like this. Most states they prohibit and like most states or the provincial government or the country legal charters of the corporate जो आपका companies ordinance हैं, ये do not allow those companies with a deficit retain earnings balance to pay off the dividends to its stockholders in case if the retained earnings have a deficit balance. तो ये कुछ इस तरह दिखता है आपका कि रिटेन अर्निंग्स को आप ये बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी सेक्शन आप लोग देख रहे होंगे कि रिटेन अर्निंग्स में डेफिसिट बैलेंस
डेबिट बैलेंस होता है जिसको हम नेगेटिव शो करके अपनी ऑनर्स इक्विटी के बैलेंस को ओवरऑल रिड्यूस कर देते हैं। ठीक हो गया? Okay, now you can see there are certain questions like what type of an account is a common dividend payable account. So you can now answer it कि common dividend payable account किस किस्म का account है? It's the current liability account. What are the three crucial dates that are involved in the process of paying cash dividend? तो कैश डिविडेंड में जो थ्री क्रूशल डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? डेट ऑफ डेक्लेरेशन, डेट ऑफ रिकॉर्ड एंड डेट ऑफ पेमेंट. Similarly, when does a dividend becomes the company's legal obligation? I already told you कि legal obligation ये उस वक्त बनती है जब आप डिक्लेयर कर देते हैं. So date of declaration वाले दिन अगर आपके डायरेक्टर्स ने वोट किया है और इस फेवर में वोट किया है कि जनाब डिविडेंड दिया जाना चाहिए, तो डेट ऑफ डेक्लेरेशन ही एक्चुअली वो डेट है जिस दिन कंपनी की ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अब वो डिविडेंड हर सूरत में पे ऑफ करे. अदरवाइज उससे पहले कोई लाइबिलिटी नहीं होती, राइट? And the last topic that we have to discuss today is stock dividend. स्टॉक डिविडेंड क्या होता है कि कंपनीज के डायरेक्टर्स ने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि हमें डिविडेंड तो देना है, लेकिन अब की बार कैश की सूरत में नहीं देना, बल्कि हम अपनी ही कंपनी के जो अनइशूड शेयर्स आपके पास पड़े हैं, जो आपने ऑलरेडी ऑथोराइज करवाए हुए हैं लेकिन अनइशूड है, वही शेयर्स हम इशू करके अपने करंट शेयर होल्डर्स को हैंड ओवर कर देते हैं, एंड विदाउट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट. आम हालात में जब आप शेयर्स लॉन्च करते हैं, कॉमन स्टॉक लॉन्च करते हैं, यू रिसीव फंड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, राइट? मैंने जिस किसी को भी अपना जनरल पब्लिक में शेयर लॉन्च किया, बेचा, उससे मैं कैश लेती हूँ. लेकिन जब आप स्टॉक डिविडेंड देते हैं, it means that you are paying the part of the profit to those shareholders in terms of a share, so you are not entitled to take funds from them, right? So a stock a dividend once declared by the corporate's directors, now what you have to do is basically a distribution of additional shares of the company's very own stock to its stockholders without the receipt of any payment. किसी किस्म के आप देखो without the receipt of the any payments from the side of the shareholders. Now there are multiple aspects in which stock dividend and cash dividends are different. लाइक कैश डिविडेंड में मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओवरऑल बैलेंस शीट का वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड में बैलेंस शीट के वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता. बैलेंस शीट का वॉल्यूम उतने का उतना ही रहता है, लेकिन जो ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन होता है उसमें कुछ अकाउंट्स में एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट के बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम स्टॉक डिविडेंड डज नॉट रिड्यूस एसेट्स एंड इक्विटी. अभी मैंने आपसे कहा ना ये एसेट्स को रिड्यूस करता है ना ये इक्विटी को रिड्यूस करता है, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, अ ट्रांसफर of portion of equity from retained earnings to the contributed capital. आप करते क्या हैं, रिटेन अर्निंग्स का कुछ पैसा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल में डाल देते हैं. समटाइम्स सिर्फ कॉमन स्टॉक अकाउंट में जाता है, और कुछ सिचुएशंस में ये कॉमन स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ कॉमन स्टॉक इन दो अकाउंट्स में जाता है. सो अभी हम वो सिचुएशंस पढ़ लेते हैं कि किस किस सिचुएशन में ये पैसा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो अगर आपका स्मॉल स्टॉक डिविडेंड हो तो फिर ये दोनों अकाउंट्स में जा सकता है, कॉमन स्टॉक एट पार में भी और एडिशनल पेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में भी. और जब आपका लार्ज स्टॉक डिविडेंड होता है तो ये सिर्फ पैसा आपका कॉमन स्टॉक को फैक्ट आउट करता है, कॉमन स्टॉक एट पार अकाउंट को फैक्ट आउट करता है. Now there are multiple reasons for stock dividends, right? Why companies opt for stock dividends? तो उसकी आप मल्टीपल रीजंस देख सकते हैं. यहाँ पर दो रीजंस उन्होंने मेंशन की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इन केस इफ अगर आपके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो जितनी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो उसकी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो उतनी कम हो जाती है. आपने अक्सर देखा होगा कि जो महंगी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड आइटम्स होते हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग कम होती हैं. लाइक अगर आप लैंड को देख लें, लैंड बहुत हाईली प्राइस्ड आइटम है. आपने तो इस ज़मीन की खरीदो फरोख्त की, लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में बिस्किट्स, ब्रेड, एग्स, इनकी एग्जांपल देखें तो ये लो प्राइस आइटम्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है. तो द थिंग इज दिस द सेम प्रिंसिपल वर्क्स इन शेयर्स एज वेल.
तो जो शेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लॉट्स में बिक रहे होते हैं, 1000 की लॉट्स होती हैं, हंड्रेड्स की लॉट्स होती हैं। तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसकी मार्केटेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड साइन। कंपनीज ऑलवेज ट्राई कि उनकी शेयर की कीमत इतनी रहे बस कि उसकी बाइंग एंड सेलिंग बहुत वाइडली हो रही हो। राइट, इट्स अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि उसके बायर्स हमेशा रेडी हो उसका शेयर खरीदने के लिए, कि अगर कोई भी इन्वेस्टर शेयर सेल करना चाह रहा है तो देयर शुड बी द मल्टीपल बायर्स टू हु आर विलिंग टू बाय दैट शेयर फ्रॉम द सेलर। राइट, सो दे जस्ट वांट कि स्टॉक अफोर्डेबल रहे, आपका शेयर जो है वो अफोर्डेबल रहे। तो इस सूरत में हाल में वो क्या करते हैं कि स्टॉक डिविडेंड हेल्प आउट करता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, कि आपकी शेयर प्राइस कंट्रोल्ड रहती है। राइट, द सेकेंड रीजन for the issuance of stock dividend is actually showing the confidence of the management on the company's well-being, that the company is doing well and it's continue to do well in the near future as well as in foreseeable future the company will perform very well. So it also exhibits that the management has a strong confidence on the company's performance in the near future. Now we have to see how to record stock dividend, or how to what is the impact of stock dividend on company's balance sheet, and especially in the owner's equity section. I said only the owner's equity section got affect out. So let's see. But before looking into the accounting, we first of all see what are the two different types of stocks dividend. As I said earlier, there are two types, like small stock dividend, small and a large stock dividend. What is a small stock dividend? अगर आप डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं 25% और लेस देन 25% ऑफ द इशूड शेयर्स, तो वो कहलाता है स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। राइट, यू कैन सी 25% और लेस देन 25% ऑफ द इशूड शेयर्स अगर आप लॉन्च कर रहे हैं एज डिविडेंड और इशू कर रहे हैं अपने करंट जो आपके एनरोल्ड शेयर होल्डर्स हैं उनमें, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। राइट, और अगर लार्ज स्टॉक डिविडेंड कब कहलाता है? जब आप 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर से ज्यादा अनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30% अनाउंस किया, 40%, 50%, तो मैं 50% ऑफ द इशूड शेयर्स उतने में शेयर्स दे रही हूँ एज डिविडेंड। तो अगर आप 30% दे रहे हैं, इट मीन्स 30% ऑफ द इशूड शेयर्स। तो अगर आपके इशूड या आउटस्टैंडिंग शेयर्स 9000 है, तो 25% ऑफ द इशूड शेयर्स 9000 कहलाएगा स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। लेकिन अगर आपने 25% से ज्यादा दे दिया है, 30%, 35%, तो 35% ऑफ द 9000 कहलाएगा लार्ज स्टॉक डिविडेंड। ठीक हो गया? अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। ये एक आपके पास ऑनर्स इक्विटी सेक्शन है जो बिफोर स्टॉक डिविडेंड आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या कुछ है। इसमें सबसे पहले है कॉमन स्टॉक। मैंने आपसे कहा था कॉमन स्टॉक एट पार इलस्ट्रेट हुआ होता है, तो ये कॉमन स्टॉक एट पार, इसकी वर्थ कितनी है इस वक्त? $1,00,000। इसमें कितने हैं? 15,000 शेयर्स इनके ऑथराइज थे। उनमें से इन्होंने शेयर्स लॉन्च कितने किए हुए हैं? 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इन 10,000 को मल्टीप्लाई बाय करें इनकी पार वैल्यू से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास उसकी वर्थ आ गई है $1,00,000। उसके बाद पेड इन एक्सेस, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू। इट मींस कि ये कॉमन स्टॉक अबव पार इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं। तो आपने 8,000 इन एक्सेस उन शेयर होल्डर से रिसीव किया था एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ दीज कॉमन शेयर्स। उसके बाद आपके पास रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है, इसमें आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की अमाउंट इस वक्त 35,000 में। टोटल ऑनर्स इक्विटी जो सेक्शन है उसकी वर्थ या उसका वॉल्यूम $143,000 है। Now we will look at the impact of small stock dividend. अब स्मॉल स्टॉक डिविडेंड में इन्होंने एक कंपनी है क्वेस्ट, उसके डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया जनाब 10% स्टॉक डिविडेंड। एज आई सेड अर्लियर, 25% से कम है तो फिर वो स्मॉल स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। सो दिस इज 10%। लेट्स सी। ओके, इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जनाब हमारे पास 10,000 इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 10% ले लें। 10% ऑफ 1000
10% ऑफ 1000, सॉरी 10% ऑफ 10,000, तो ये आपके पास बन जाएगा 1000 शेयर्स। इट मीन्स 1000 शेयर्स आप एज स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। 10,000 शेयर्स आपके इशूड थे, 10,000 इशूड थे। उनमें से आप लोगों ने स्मॉल स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया, इट मीन्स आपने 10% अनाउंस किया। सो 10% ऑफ 10,000, इट मीन्स आपने टोटल 1000 शेयर्स एज स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सो वो जो 1000 आप शेयर करें, आपने लिख लिया डिक्लेयर्ड 1000 शेयर। अब हमने आपने क्या किया, रिटेन अर्निंग्स। इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें एक्चुअली डिफरेंट अकाउंट्स का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं, जिससे आप रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। स्मॉल स्टॉक डिविडेंड में आपके दोनों अकाउंट्स इफेक्ट आउट होते हैं, कॉमन स्टॉक प्लस पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ कॉमन स्टॉक, दोनों अकाउंट्स इफेक्ट आउट होते हैं। किस तरह, रिटेन अर्निंग्स को देखिएगा। रिटेन अर्निंग्स बेसिकली आपने जो स्मॉल स्टॉक डिविडेंड होता है ना बेटा आपका, दे आर रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। ये आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, और जो लार्ज स्टॉक डिविडेंड होता है दैट इज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। उसका भी मैम देखेंगे। तो यहाँ पे अब आप स्मॉल स्टॉक डिविडेंड देख रहे हैं, तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है that it is always recorded at market value. So we will see first what is the market value of this Quest share right now. Now the market price of the Quest stock on December 31st is just 15 per share, right? तो 15 multiplied by 1000 कितना हो गया, 15,000। तो हमने रिटेन अर्निंग से बैलेंस रिड्यूस कर दिया बाय $15,000। अब कॉमन स्टॉक जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ये आपको पता है हमेशा एट पार रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने कहा 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, 10 पार वैल्यू, तो आपके आ जाएगा 10,000। और जो एग्जेस था 5,000 वो आपका पेड इन कैपिटल एंड एग्जेस ऑफ पार के अंदर रिकॉर्ड हो गया। सो एंट्री वुड बी रिटर्न अर्निंग्स डेबिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रेडिट, पेड इन कैपिटल एंड एग्जेस ऑफ पार वैल्यू कॉमन स्टॉक क्रेडिट। ये होगी आपकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन पर एंट्री। अगेन डेट ऑफ रिकॉर्ड पर किसी किस्म की कोई एंट्री पास नहीं होगी। और डेट ऑफ पेमेंट में अब आप देखिएगा, अच्छा ये इन्होंने ना आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन भी दिखाया हुआ है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड, राइट। ये इन्होंने ही देखिएगा, ये 3 अकाउंट्स आपके इफेक्ट आउट हुए हैं जो इन्होंने आपको डार्क कलर्स में शो कर दिए हैं कि रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस अब आपका 15,000 से कम हो गया है। पहले ही अगर आपको याद हो तो ये 35,000 था। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ओवर हियर यू कैन सी, राइट, दिस वाज 35,000 previously before the issuance of stock dividend, it was previously 35,000। तो आपने अब 35,000 से ये कम होकर कितना रह गया है, 15,000 इसमें से माइनस कर दें, 20,000 रह गया है। पेड इन एक्सेस ऑफ कैपिटल स्टॉक, उसमें इसमें ऐड ऑन हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि इसका भी क्रेडिट बैलेंस है और ऑनर्स इक्विटी के सब अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 8 और 5 13,000 हो गया, और ये आपने अकाउंट न्यू अकाउंट यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिएगा एट द डेट ऑफ पेमेंट क्या एंट्री होगी। एट द डेट ऑफ पेमेंट एंट्री ऐसे होती है बेटा कि ये जो आपके लिखा हुआ है ना, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये वाला कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये एक्चुअली अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपकी कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट और कॉमन स्टॉक एट पार 10,000 क्रेडिट, राइट। कॉमन स्टॉक एट पार क्रेडिट हो जाएगा, राइट। Next, we have recording a large stock dividend. As I said you earlier, that large stock dividends are always recorded at par, and it only affects the common stock account. The excess paid in capital in excess of common stock, this account is not get affected by the issuance of large stock dividend. In this example, first of all, let's see the demonstration question. Over here, it illustrates that Quest Company's board of directors, what they have declared, they declared a dividend of 30%. They declared a dividend of
30%, इट मीन्स 25% से ज्यादा अब आपने डिविडेंड अनाउंस किया स्टॉक डिविडेंड, तो इट मीन्स अब ये लार्ज स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा और ये किस पे रिकॉर्ड होगा, एट पार रिकॉर्ड होगा, राइट। नाउ डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे आप इसकी एंट्री देख रहे होंगे। इन्होंने कैलकुलेट करके आपको बताया है कि 30% जो आपने अनाउंस किया है स्टॉक डिविडेंड, एक्चुअली वो शेयर्स कितने बनते हैं, 3000 शेयर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कंपनी की अगर आप शुरू में देखें, मैं दोबारा से आपको बैलेंस शीट का वॉल्यूम भी दिखा देती हूँ, उनके 10,000 शेयर से जो इशूड थे, 15,000 इनके ऑथराइज थे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बैलेंस शीट का ऑनर्स इक्विटी सेक्शन दिखाया था। 15,000 शेयर्स इनके ऑथराइज थे, 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए हुए थे। तो उन 10,000 शेयर्स पर अगर आप ये 30% अप्लाई करें, 30% स्टॉक डिविडेंड, तो ये बनते हैं 3,000 शेयर्स। और इसकी एक ही एंट्री है, और वो एंट्री क्या है कि आपने डेट रिकॉर्ड करें, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करें। एज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन वाज 31st ऑफ दिसंबर, सो वो मैंने 31st ऑफ दिसंबर रिकॉर्ड की। रिटेन अर्निंग्स टोटल 30,000, इसमें से लेस कर दे रिटेन अर्निंग्स में से, डिक्रीजिंग ऑन इक्विटी विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, और कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट बाय 30,000। ये हमेशा एट पार होता है, इसमें किसी किस्म का पेड इन कैपिटल इन एक्सेस का कोई चक्कर नहीं होता। जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो वही सेम एंट्री होगी जो अभी आपने एंट्री की थी कि कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट और कॉमन स्टॉक एट पार क्रेडिट, यही सेम एंट्री होगी जब आप इसकी पेमेंट कर रहे होंगे, राइट। कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट एंड कॉमन स्टॉक एट 10 पार वैल्यू क्रेडिट। लेकिन हाँ, लार्ज स्टॉक डिविडेंड में हमारी ये वाली अमाउंट सब 30,000 है, जैसे आपने इस ट्रांजेक्शन में देख रहे होंगे 30,000 है। So this is how you have to record transactions that are related to stock dividend and cash dividend. I'm gonna highlight certain questions from the exercise, and otherwise you can practice them by your own self. And just let me know in case of any query, please. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.